Hello everyone. So next problem is that Raju's age after 15 years will be 5 times his 5 years back. What is the present age of Raju? Okay. So स्टार्टिंग में 4 स्टेटमेंट्स दिए थे, वो स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर रहा तो क्या लेना है, एगो रहा तो क्या लेना है, या 5 टाइम्स 2 टाइम्स 10 टाइम्स क्या रहा तो क्या लेना है. ठीक है. सो आफ्टर 15 इयर्स इस आफ्टर 15 इयर्स कितनी हो जाएगी, तो उसके लिए पहले प्रेजेंट एज पता होना चाहिए, देन हम आफ्टर निकाल सकते हैं. सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राजू. राजू का प्रेजेंट एज पता नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स लेना पड़ेगा. ओके. लेट द प्रेजेंट एज of Raju, present age of Raju be x years. Okay. Then present age x है, तो after 15 years कितना हो जाएगा, after 15 years x plus 15 years. Okay, then will be 5 times his age 5 years back. Okay, after 15 years x plus 15. So 5 years back कितना रहेगा, x minus 5. 5 years back x minus 5 years. Okay, now there is a condition that जो 15 years बाद का जो एज है वो will be कितना हो जाएगा, 5 times his age 5 years back. Okay, so according to condition after 15 years, see here, after 15 years x plus 15 will be equal to 5 times 5 times means multiply 5 times his age 5 years back x minus 5 x plus 15 find 3x 5 years find 2 5 minus 25. so minus 25 उधर जाकर क्या हो जाएगा, plus 25 plus x इधर आकर क्या होगा, minus x 15 plus 25 40 4x minus x 5x minus x 4x मल्टीप्लाइड 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो 4 10 जा 50. ओके, सो 40 by 4 is equal to x. 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 10. ओके, सो हमने परसेंटेज ऑफ राजू कितना लिया था, x. देयरफॉर परसेंटेज ऑफ राजू इज 10 years. ओके, गॉट इट. Okay, next question is that the ages of two persons differ by 16 years. If 6 years ago the elder one be 3 times as old as the younger one, find their percentages of the elder one. Okay, so first statement का meaning क्या है, the ages of two persons differ by 16 years. means दो person के age का difference है 16 years. Okay, for example एक person है जिसका age मुझसे 16 इयर्स ज्यादा है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरा एज 25 और कोई मुझसे 16 इयर्स 16 साल बड़ा, तो उसका एज कितना रहेगा, 25 प्लस 16 रहेगा. ऑब्वियसली दोनों को ऐड करना पड़ेगा. ओके, सो ये एज रहेगा यंगर वन का और ये एज रहेगा एल्डर वन का. राइट. सो इन दिस वे अगर हम यंगर वन का एज एक्स लेते हैं, let the present age of younger one, let the present age of younger one is x. so elder one में कितना हो जाएगा, देखिए यंगर का 25 ईयर था, आफ्टर अगर कोई से 16 इयर्स बड़ा है तो उसमें उसको ऐड करना पड़ेगा. तो हमने अगर यंगर का x लिया है तो एल्डर में कितना हो जाएगा, x plus 16. Okay, so in this way the present age of elder one, the present age of elder one is
x plus 16. ओके, नाउ ये प्रेजेंट एजेस होते हैं 6 years ago. ओके, अभी यंगर वन का एज कितना है x, प्रेजेंट एज x है, तो 6 years ago कितना होगा उसका 6 years ago. यंगर वन इज x minus 6, ago इस माइनस करना पड़ेगा. सेम x plus 16, एल्डर वन भी क्या रहेगा 6 years ago, x plus 16 minus 6, जो कि क्या हो जाएगा प्लस x plus 10. 16 minus 6 10. ओके, 6 years ago मिल गया. बट कंडीशन क्या दिया उसमें कि 6 years ago द एल्डर वन भी 6 साल पहले एल्डर वन 6 साल पहले एल्डर वन कितना था x plus 10 as per condition. As per condition. Okay, so as per condition 6 years ago the elder one कितना हो जाएगा x plus 10. elder one x plus 10 be 3 times is equal to be 3 times multiply as old as the younger one. younger one का कितना था x minus 6. so x plus 10 3 into x 3x minus 3 into 6 18 plus x इधर आकर क्या हो जाएगा minus x minus 18 उधर जाकर क्या हो जाएगा plus 18 10 plus 18 28 3x minus x 2x. ओके, मल्टीप्लाई टू उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड 2 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा 14. सो x का वैल्यू किसका था द प्रेजेंट एज ऑफ यंगर वन इज x, तो यंगर वन का कितना हो गया 14. बट हमको फाइंड आउट किसका करना है एल्डर वन. एल्डर वन का एज कितना लिया था हमने x plus 16. ओके, एल्डर इज इक्वल टू x plus 16. x का वैल्यू 14 मिल गया, so 14 plus 16 is equal to 30 years. Okay, so in this way the present age of elder one is 30 years old. Okay, got it? Okay, next question is that the product of the ages of Ankita and Nikita is 240. Okay, so if twice the age of Nikita is more than Ankit's age by 4 years, what is Nikita's age? Okay, फर्स्ट स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है अंकित और निकिता के एज का प्रोडक्ट कितना है 240. ठीक है, सपोज ये अंकित है और ये निकिता, इन दोनों का प्रोडक्ट का एज कितना दिया है 240. ओके, बट अगर हमने निकिता का एज x लिया, निकिता का एज x लिया, तो अंकित का एज क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाइड x इधर जाकर क्या हो जाएंगे डिवाइड. ओके, सो जब हम अंकिता का एज x लेंगे, निकिता का एज x लेंगे, अंकित का एज कितना हो जाएगा 240 by x. ओके, सो let the present age of Nikita be x. Okay, so the present age of the present age of Ankit, the present age of Ankita, sorry Ankit will here अंकित इंटू निकिता, अंकित और निकिता के एज का प्रोडक्ट कितना 240. ऐसा क्वेश्चन में दिया है, क्या बोला है अंकित और निकिता के एज का प्रोडक्ट, अंकित और निकिता के एज का प्रोडक्ट कितना है 240. ओके, सो अभी हमने निकिता का एज कितना दिया x दिया. ओके, सो अंकित का एज कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड x इधर जाकर क्या हो जाएंगे डिवाइड. ओके, सो अंकित का एज कितना हो गया 240 by x. ओके, therefore the present age of Ankit be 240 by x. ओके, नाउ एक कंडीशन दिया है as per condition if twice the age of Nikita, निकिता का एज कितना है x, उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x. ओके, twice the age of Nikita is more than का मीन क्या होता है प्लस, more than Ankit's age by 4 years. ओके,
इज इक्वल टू 240 बाय x. ओके, सो डिवाइड बाय x इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2x into x, 2x square plus x into 4, 4x is equal to 240 प्लस 240 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 240. ओके, सो ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, और यू कैन कॉल एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 2 से डिवाइड करो, डिवाइड इट बाय 2. 2 से क्यों डिवाइड करें, सिंप्लीफिकेशन. इससे 2 को डिवाइड करेंगे तो इंटू हो जाएगा और ये बचेगा x स्क्वायर. 2 2 जा 4 और ये 120. ओके, सो इस टाइप के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन लो. फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, हियर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. ओके, सो इसको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन लेना है. फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 120 x स्क्वायर. तो इस 120 के ऐसे दो फैक्टर्स लेना है जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ओके, सो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, माइनस 120 x स्क्वायर. ओके, नाउ 120 कौन से टेबल में आता है, 12 और 10. ओके, 12 10 जा 120. ओके, नाउ बट हमको क्या चाहिए, प्लस 2 चाहिए. 12 में से माइनस 10 किया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. ओके, और इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो माइनस 120. सो इसको x लगा दो, इसको भी x लगा. ठीक है, नाउ प्लस 2x की जगह पे क्या लिखना है, ये प्लस 2x की जगह पे 12x और माइनस 10x. x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. क्या चेंज किया, इस 2x की जगह पे ये 120 के जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स लिखे. ओके, नाउ इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, x. ब्रैकेट में क्या रहेगा, x प्लस 12. यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, 10. सेकंड ब्रैकेट एज इट इज आएगा, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. दोनों में से एक ब्रैकेट ले लो, x प्लस 12. रिमेनिंग एक ब्रैकेट में ले लो, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ओके, प्लस 12 इधर जाकर क्या होगा, माइनस 12 और माइनस 10 इधर जाकर क्या होगा, प्लस 10. ओके, x के दो वैल्यू आ गए, एक माइनस 12 और एक प्लस 12. एज नेवर बी नेगेटिव. ओके, एज नॉट बी नेगेटिव, not be negative. Therefore, age of Nikita is 10. Okay, got it?